પ્રિયજનો, આપણે હતા પરમાનંદાસજી ઉપર. પરમાનંદાસજીનું ચરિત્ર અદ્વિતીય છે, ભવ્ય છે, દિવ્ય છે. અંતિમ સમયમાં સુરભિકુંડ, શ્રી ગિરિરાજજીની પરિક્રમામાં સુરભિકુંડ નામની જગ્યા છે કે જ્યાં પરમાનંદાસજીએ પોતાના દેહનું ત્યાગ કર્યું છે. આગળ જતા આપણે બધા એકવાર શ્રદ્ધાથી અને ભાવથી પરમાનંદાસજીને મનથી નમન કરીએ, વંદન કરીએ અને એકવાર જોરથી જયઘોષ કરીએ, બોલો શ્રી ગિરિરાજ ધણ કી જય. આગળ જતા કુંભનદાસજી ક્યાં બિરાજી રહ્યા છે? આ તરફ જે પ્રથમ બિરાજી રહ્યા છે આપ છે શ્રી કુંભનદાસજી. અને શ્રીનાથજીના સખાઓમાં સૌથી જો કોઈ વરિષ્ઠ હોય, અષ્ટ સખાઓમાં સૌથી કોઈ સિનિયર મોસ્ટ સખા હોય તો આ કુંભનદાસજી. અને એમનું અને શ્રીનાથજીનું બહુ સારું ભળે. श्रीनाथ એકવાર કહ્યું, कुम्भना यो बता कि तेरे कितने बेटा हैं? तो कहे महाराज आप काहे को पढ़ो, रहने दो ना, आप क्यों जानना है आपको? नहीं कि मुझे बता तेरे कितने बेटा है. तो कहे महाराज मेरे 1.5 बेटा है. ब्रजवासी आते भाई, तो कहे 1.5 बेटा कहाँ से हो जाए करे? हमने सुनी बेटा 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये 1.5, 2.5, 3.5 बेटा कब से होने लग गए? तो कहे महाराज मेरा 1.5 बेटा है. तो कैसे 1.5 बेटा है? तो कहे यूँ तो मेरे 7 बेटा हैं, पर 7 बेटा में से एक बेटा जो आप में बहुत श्रद्धा रखे, वाको नाम है चतुर्भुज दास, तो यानी मेरी नजर में वो पूरा बेटा है. और दूसरो बेटा कि जाको नाम है कृष्णदास, जाको भाव आप में नहीं है पर आपकी गैयान में है, और यानी मेरी नजर में वो आधो बेटा है. और बाकी के 5 ना आप में भाव रखे हैं ना गैयान में भाव रखे हैं, और यानी मेरी नजर में वो मेरे बेटा ही नहीं है. तो क्या मेरे 1.5 बेटा. तो एवा कुमनदासजी કે જે બહુ શ્રીનાથજીની અને એમની બહુ રસાકસી ચાલતી હોય, જ્યારે પહેલી વાર કુંભનદાસજી શ્રી મહાપ્રભુજીને મળ્યા ત્યારે એક જ દુઃખ આમના મનમાં હતું કે આમને પુત્ર ન હતું. બધું હતું પણ પુત્ર ન હતું. શ્રી વલ્લભને મળ્યા અને શ્રી વલ્લભે કહ્યું કે मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो मांगना हो मांगो. તો કુંભનદાસજી તો શાંત થઈ રહ્યા, એ કંઈ બોલ્યા નહીં. પણ જે એમના ધર્મપત્ની હતા એમણે કહ્યું, कृपानाथ सब है पर सिर्फ एक बेटा नहीं है, आप कृपा करके एक बेटा ऐसा आशीर्वाद दो कि हमको एक बेटा हो जाए. घर आके कुंभनदास जी ने बहुत डांटा कि तूने क्या मांग लिया महाप्रभु जी के पास. तो क्या मैंने क्या गलत किया, मैंने बेटा ही तो मांगा. तो क्या अरे बेटा मांगा तो बेटा मिलेगा, कृष्ण मांगती तो कृष्ण मिल जाते तुझे. तने मांग मांग के भी क्या मांगा. મહાભારતના સમયમાં યુદ્ધ ચાલુ થવાનું હતું એની પહેલા अर्जुन અને दुर्योधन दोनों प्रभु के पास मदद मांगने गए. प्रभु पौड़े हुए थे, द्वारकाधीश पौड़े हुए थे, और प्रभु ने जाग के उन्हें 2 ऑप्शन दिए कि एक तरफ मेरी पूरी सेना है, अक्षौहिणी सेना है, 18 अक्षौहिणी सेना, करोड़ों सैनिक, करोड़ों घोड़े, करोड़ों हाथियां, और दूसरी तरफ अकेला मैं, निहत्था मैं, कि मेरा नियम है कि मैं महाभारत में एक भी शस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ. अर्जुने અને દુર્યોધને જ્યારે પસંદગી કરી, દુર્યોધને ભગવાનની સેના માંગી, અર્જુને ભગવાનને માંગ્યા. જ્યારે આપણે બધા પણ પ્રભુની સન્મુખ જઈએ, હવેલીમાં જઈએ, તો આપણા બધાની પાસે પણ 2 વિકલ્પો હોય, ભગવાનથી માંગવું અને ભગવાનને માંગવું. જે બુદ્ધિમાન છે એ ભગવાનથી નથી માંગતો, એ તો ભગવાનને જ માંગી દે છે. કારણ કે એકવાર ભગવાન આવી ગયા તો એમની સાથે લક્ષ્મી પણ આવી જશે, અન્નપૂર્ણા પણ આવી જશે. અને ભગવાનમાં 6 ગુણો, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય. તો એકવાર ભગવાન આવ્યા તો એમની સાથે બધું જ આપમેળે જ મળી જશે. અતઃ કુંભનદાસજી આ વાતને સમજી રહ્યા હતા, અને એટલા માટે આપે પોતાના ધર્મપત્નીને આ વાત કરી છે. એકવાર જ્યારે યવનોનો ઉપદ્રવ થયો ત્યારે ઠાકુરજીએ વિચાર કર્યું છે કે હું એક મારા નાગા સાધુ ભક્ત છે કે જેમનું નામ હતું ચતુરા નાગા. શું નામ હતું? શું નામ હતું? જાગતા રહેજો ભાઈ, હે ને.
ચતુરા નાગા એમનું નામ હતું. અને તરહેટીમાં જ એક ઘનો હતો, ટોડકો ઘનો. ત્યાં બેસીને ભજન કરતા. શ્રીનાથજીના દર્શનની બહુ ઈચ્છા, બહુ ઉત્કંઠા, બહુ અભિલાષા, પણ નિયમ કે ગિરિરાજજીની ઉપર પગ મૂકવો નહીં. તો હવે આમને દર્શન આપવા શ્રીનાથજીએ મનમાં વિચાર કર્યું કે હું જઈશ પોતે અને આમને દર્શન આપીશ. અને ત્યારે શ્રીનાથજીએ યવનોનું ઉપદ્રવ કરાવડાવ્યું છે. कुम्भनदास जी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, कुंभना तो मेरे लिए एक भैंस ले आ और वो भैंस पे बैठ के अपन लोग एक जगह चलेंगे जहाँ मैं तुको ले जाऊँ. व्यवस्था થઈ છે અને પ્રભુ અને એમના સદુ પાંડે ઇત્યાદિ સખાઓ બધા સાથે મળીને શ્રાવણનો એ મહિનો અને ત્રયોદશીનું એ દિવસ કે જ્યારે ટોડકો ઘનો વ્રજમાં શ્રી ગિરિરાજજીમાં એક સ્થાન છે ત્યાં પધાર્યા છે. ચતુરા નાગા ગદગદ થયા છે કે પ્રભુએ મારી મનોરથ સ્વીકાર કરી અને મને દર્શન આપ્યા. પ્રભુ એટલી દૂર સુધી પધાર્યા છે, શું કરું. તરત કંટોળાનું શાક અને પૂડી અને શીરો સિદ્ધ કરીને પ્રભુને ભોગ ધર્યું છે. જે દિવસને આપણા ત્યાં આજે શું કહેવાય છે, કંટોળા તેરસ કે પવિત્રા 11, પવિત્રા 12 અને પછી કંટોળા 13. પુષ્ટિ માર્ગમાં આજે પણ એ દિવસે પ્રભુ કંટોળાનું શાક આરોગી રહ્યા છે. વૈષ્ણવ અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની મજા એ છે કે લોકો ઉત્સવ ભૂલી જાય પણ ઉત્સવની સામગ્રી ભૂલતા નથી. ઉત્સવ કોના માટે થયું એ ભૂલી જાય પણ વસ્તુ ભૂલતા નથી. ગુસાઈજીનો ઉત્સવ આવે ને તો ગુસાઈજીને ભૂલી જાય પણ જલેબીઓ યાદ રાખે મગજમાં. ગુરુ પૂર્ણિમા આવે તો ગુરુને ભૂલી જાય પણ કચોડીને યાદ રાખે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી પ્યારે વલ્લભ કી જય, બોલો વિઠ્ઠલ કી જય. પ્યારે વલ્લભ કી જય, બોલો વિઠ્ઠલ કી જય. પ્યારે વલ્લભ કી જય, બોલો વિઠ્ઠલ કી. પ્યારે વલ્લભ કી જય, બોલો વિઠ્ઠલ કી જય. બોલો યમુને મહારાણી કી જય જય જય. બોલો યમુને મહારાણી કી જય જય જય. प्यारे वल्लभ की जय, बोलो विठ्ठल की जय. प्यारे वल्लभ की जय, बोलो विठ्ठल की जय. श्री निधलाल प्यारे की जय, श्री गोकुल के चंद की जय. वल्लभाधीश गिरिराज धरण की जय. तो वहां चतुरा नागा ने प्रभु को कंटोला का शाक भोग धरा है. प्रभु श्री राधा जी सहित भोग अरोगने लगे हैं और मन में विचार किया, कुंभना है या तो कहूँ कछु गाय, कछु कीर्तन सुनाए, मेरी तारीफ करे, मेरे बखान करे. कुंभना देख राधा जी पधारी हैं तो कछु सुंदर मुझको गा के सुना. कुंभनदास जी ने प्रारंभ किया. भावत है तो ही टोड़ को घनो, भावत है तो ही टोड़ को घनो. काटा गोखरुआ गे, काटा लागे गोखरु लागे. फट्यो जात यह तनु, भावत है तो ही टोड़ को घनो. अरे प्रभु ये मुझको कहाँ ले आए आप? भावत है तो ही टोड़ को घनो. यहाँ तो आवे में खुद तो बैठ गए पड़िया पे और कांटे लगे हमको.
खुद तो बैठ गए महाराज की तरह ऊपर भैंस के, और गोखरू लगे हमको। ठाकुर जी विचार कर रहे थे कुछ मेरी बखान करके सुनाएंगे, कुछ तारीफ सुनाएंगे राधा जी के सन्मुख। ठाकुर जी कह रहे ये कुम्भना कभी ना सुधर सके, ये तो मेरो सखा को सखा ही रह गो। तो और प्रियजन देखिए ना, ब्रजवासियों का आज भी, तब भी भाव अलग था, आज भी उनका भाव कुछ अलग ही है। आप ब्रज में जाओ और ठीक है, अमुक ब्रजवासी भले उनकी वृत्ति जैसी भी हो, पर आप ब्रज के असली लोगों से मिलो। एक बार हम कामा गए तो हमारे साथ एक वैष्णव था, एक सेवा में था। तो कामा में मंगला सुबह 5 बजे होती है, तो 5 बजे मंगला में हम सेवा में गए आरती करने, और ये दर्शन करने आए। और हम देखें तो बार बार धक्का लगाएं, बार बार किसी को धक्का लगाएं, भीड़ बहुत होती है वहां सुबह मंगला में। तो ऊपर आए, फिर राजभोग धर के तो कहे जय जय, आपके ब्रजवासियों का तो भाव कुछ अलग ही होता है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने देखा तो बहुत धक्के लगा रहा था आज। तो क्या जे धक्के लगा रहा था क्योंकि मेरे बाजू में एक डोकरी थी, डोकरी समझते हैं ना आप, उम्र वाले थे, वो मुझे बहुत धक्का मार रहे थे। तो मैंने उनको मजाक में पूछ लिया, कहा है अम्मा आज नहावा के ना आई का सुबह? मजाक क्या स्वभाव था उनका। कैसे अम्मा आज नहा के ना आई का? तो क्या नहा के ना आई? तो क्यों नहा के ना आई? मंदिर में आइए नहा के आना चाहिए। तो क्या अरे मैं कहे को नहा के आऊं, ये कौन सा नहा के बैठो है? मंगला के दर्शन थे तो प्रभु के स्नान होते नहीं है, तो क्या मैं कहे को नहाऊं, ये कौन सा नहा के बैठो है? तो ब्रजवासियों का आज भी भाव अलग ही होता है, उनकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो कुमन दास जी का चरित्र बहुत दिव्य है, बहुत शुद्ध है। अंत में संकर्षण कुंड है आनियोर के पास, वहाँ कुमन दास जी ने लीला की है। तो हम सभी मन से उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और एक बार श्रद्धा से और भाव से बोलते हैं, बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। कुमन दास जी का चरित्र हुआ। अब हम कृष्णदास जी के चरित्र का श्रवण करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड लास्ट जो पखावज मृदंग का वादन कर रहे हैं वो श्री कृष्णदास जी हैं। और इन 8 सखाओं में से सिर्फ एक ही सखा अपने गुजरात के थे, और प्रभु के अधिकारी की सेवा इनको सौंपी गई थी। बहुत भाव वाले थे, बहुत श्रद्धावान थे, किंतु एक बार ऐसा कुछ हुआ कि श्री गुसाई जी से इनकी कुछ जमी नहीं, और परिणाम ये हुआ कि इन्होंने श्री गुसाई जी को सेवा से बाहर कर दिया। विचार करो कि किसी मंदिर के अधिकारी ने वल्लभ कुल को सेवा से बाहर कर दिया, श्रीनाथ जी की सेवा से। चाहते तो श्री गुसाई जी आराम से इनको ना पाड़ सकते थे कि अरे तू कौन हो मुझको कहे वालो, पर क्योंकि परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन है आप तो, और इसलिए आपने वो विरह स्वीकार किया। और चंद्र सरोवर में आप यदि कोई गए हों चंद्र सरोवर, तो वहाँ श्री वल्लभ की बैठक है, और वहाँ आप साइड में जाओ तो ऊपर एक बंगली है कि जहाँ श्री गुसाई जी 6 महीने विराजे, और वहाँ से श्रीनाथ जी का मंदिर सामने दिखता है। तो श्रीनाथ जी उनको दर्शन वहाँ से देते कि जो खिड़की भी फिर कृष्णदास जी ने बंद करवा दी। तो अब बातचीत कैसे हो? उस जमाने में व्हाट्सएप तो था नहीं, वीडियो कॉल तो थे नहीं, बात कैसे हो? श्रीनाथ जी और श्री गुसाई जी बात कैसे करें? तो श्री गुसाई जी रोज जो ये फूल की माला होती है वो श्रीनाथ जी के लिए चंद्र सरोवर पर यह माला सिद्ध करते, और इसमें खुद के हृदय के भाव एक पत्र में लिख देते संस्कृत में, और इस माला के अंदर उसे पिरो देते। और वो माला जब श्रीनाथ जी को धरते जतिपुरा में, तब वो ये पत्र निकालते और उसका वांचन करते, और उसका प्रत्युत्तर श्रीनाथ जी लिखते खुद के पान के बीड़े में। जो बीड़ा होता है हवेली का, जो बीड़ो होय अने शयन पछी मुखियाजी वल्लभकुलने माड़ा अने बीड़ा धरावे। तो शयन पछी प्रभु जे उत्तर जे श्रीनाथ जी लखता वो श्री गुसाई जी के पास लेके आते, और श्री गुसाई जी वो बीड़े को खोलते और वो पत्र का वांचन करते, और उस बीड़े को आप अरोग जाते। तो आज भी जो पत्र श्री गुसाई जी ने लिखे हैं श्रीनाथ जी को, वो हमारे पास प्राप्त हैं, कि जिनका नाम है 9 विज्ञप्तियाँ संस्कृत में हैं। पर जो पत्र श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी को लिखे
क्योंकि श्री गुसाई जी उसे अरोग जाते, इसलिए वो हमारे पास आज प्राप्त नहीं है। 6 महीना विरह श्री गुसाई जी ने सहन किया है। एक बार बीरबल दर्शन को आए, और जहाँ दर्शन को आए तो कृष्णदास और सबसे पूछा गुसाई जी कहाँ हैं। श्री गिरधर जी ने कहा बीरबल, ये जो अधिकारी हैं मंदिर के, उन्होंने श्री गुसाई जी को 6 महीना से सेवा से दूर कर रखा है। बीरबल गुस्सा हो गए, वो कौन होता है गुसाई जी को दूर करने वाला, उसको कारागृह में, जेल में बंद कर दो। कृष्णदास जी को कारागृह में बंद किया और घोड़े पे सवार होके चंद्र सरोवर आए श्री गुसाई जी को खुशखबर सुनाने कि आप चिंता मत करो, हमने कृष्णदास को जेल में बंद कर दिया है। आशा थी गुसाई जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत हर्ष व्यक्त करेंगे, किंतु गुसाई जी बहुत दुखी हो गए, गदगद हो गए कि तुम्हारी ये क्या मति सूझी तुमको कि तुमने वल्लभ के सेवक को कारागृह में बंद कर दिया। अब तो वो जब आएगा तभी मैं अन्न या जल ग्रहण करूंगा। उसको लेके आए हैं, कृष्णदास जी पधारे हैं। कसुम्बा छठ का वो दिन है, रथ यात्रा के बाद छठ आती है कि जिस दिन प्रभु कसुम्बे वस्त्र धारण करते हैं श्रीनाथ जी, और उस दिन श्री गुसाई जी का जो 6 महीने का विरह था वह समाप्त हुआ है। कृष्णदास जी श्री गुसाई जी के चरणों में पड़ गए हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करी है और जोर से बोल उठे हैं, बोलो श्री गुसाई जी परम दयाल की। और फिर उन्होंने कीर्तन गाया है कि जो आज भी प्रत्येक वैष्णव के घर जब वल्लभ कुल पधारते हैं और जो आरती की जाती है वह कीर्तन उन्होंने वहाँ गाया है। चलिए हम सब मिलके वो कीर्तन का श्रवण करें, चिंतन करें। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त माथे। परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त माथे। हाँ जे जन शरण अनुसराये, जे जन शरण आय अनुसाराही आगहि सोपत श्री गोवर्धन नाथ। करत कृपा निज हस्त माथे। अपरम कृपालु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त माथे। परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवदा भज कृष्णदास काज सब सरही। 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 जो जाने श्री विठ्ठलनाथ करत कृपा निज हस्त माथे। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज, करत कृपा निज, करत कृपा निज हस्त माथे। इस प्रकार परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्तदे माथे, कि जो खुद का श्रीहस्त माथे पे रख के कृपा करते हैं। जे जन शरण आए अनुसर ही गही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ, कि जो एक बार उनकी शरण में आ जाता है उनका हाथ पकड़ के वो श्री गोवर्धन नाथ जी को सौंप देते हैं। परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवदारा भयो साथ है, कि जो इस भव सागर में से हमको कोई तार सकें तो वो श्री गुसाई जी ही हैं।
और इसलिए कृष्णदास उनका भजन करता है। भज कृष्णदास काज सब सरहि, सभी काम छोड़ के एक ही काम करो कि उनका भजन करो, और जो होगा जो जाने श्री विट्ठल नाथ, जो होगी वो देखी जाएगी। श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार का भाव व्यक्त करके कृष्णदास जी के चरित्र को हम सभी यहाँ विराम देते हैं। उन्हें मन से श्रद्धा से हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो 4 सखा श्री वल्लभ के हुए, उनका चरित्र यहाँ समाप्त होता है। अब हम प्रवेश करते हैं श्री गुसाई जी के प्रथम सखा सेवक, जिनका नाम था श्री नंददास जी। क्या नाम था? अरे वाह, अब तो आप सब जाग रहे हो। अब तो नंददास गोपिन के द्रग अली लपटन को, अकुलाय अरिचल दूल है देखन जाए। श्री रामचरितमानस जिन्होंने लिखी, तुलसीदास गोस्वामी, उनके ये भाई थे, छोटे भाई थे। बचपन में बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति न थी, किंतु संसारी थे। और एक बार घर से निकल गए हैं सन्यास लेके, वैराग्य लेके, और घूमते घूमते ब्रज में पहुंच गए हैं। और जहां श्री गुसाई जी के दर्शन इनको हुए हैं, श्री गुसाई जी के दर्शन हुए, मन पावन हुआ है, मन पवित्र हुआ है, मन शुद्ध हुआ है। प्रभु सानुभाव जताने लगे हैं, प्रभु के ये कीर्तन करने लगे हैं। और वहाँ एक बार तुलसीदास जी, जो इनके बड़े भाई थे, वो इन्हें ढूंढते ढूंढते पहुँचे हैं ब्रज में। और जहाँ अपने छोटे भैया से मिले, बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ये तो बड़ा संसारी व्यक्ति था, ये अचानक कैसे इतना भक्ति भाव वाला हो गया। तो कहा, ये सब मेरे गुरुदेव श्री गुसाई जी की कृपा से ही हुआ है। और चलो, आज आप ब्रज में आ ही गए हो, तो मैं आपको श्रीनाथ जी के दर्शन कराने के लिए गिरिराज जी के ऊपर ले चलता हूँ। तुलसीदास जी ने नंददास जी दर्शन करावा माटे श्रीनाथजीना मंदिરમાં લઈ જાય છે। दर्शन खुले तब नंददास जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम की, किंतु तुलसीदास जी ने हाथ भी न जोड़े। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बड़े भक्त हैं, ये क्यों भगवान को नमन नहीं कर रहे हैं। कह रहे, बड़े भाई साहब, आप प्रणाम तो करो, ये तो हमारे भगवान यही श्रीनाथ जी हैं। तो कहें, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण धरो हाथ। ये तुलसी का मस्तक कोई सस्ता मस्तक नहीं है नंददास, ये तभी नमेगा जब मेरे सामने धनुष और बाणधारी राम खड़े हो जाएं। ये बात सुन गए श्रीनाथ जी। कित मुरली बनमाल चंद्रिका, कित राधा को साथ, निज भक्तन के कारणे श्याम भये रघुनाथ। श्रीनाथ जी ने खुद की चंद्रिका एक श्रीहस्त से निकाली, एक श्रीहस्त से खुद की वेणु जी साइड में धरी, और एक श्रीहस्त में धनुष लिया, एक श्रीहस्त में बाण लिया, और श्रीनाथ जी ने तुलसीदास जी को रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिए। तुलसीदास जी गदगद हुए हैं कि मेरे लिए प्रभु ने इतनी कृपा करी कि श्रीनाथ जी ने भगवान श्री राम के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। गोकुल ले गए और श्री गुसाई जी के सन्मुख उन्हें ले गए। आज भी आप मथुरा जाएं, मथुरा में एक मंदिर है राम श्याम का मंदिर, कि जहां आधा स्वरूप राम का है, आधा स्वरूप श्याम का है। बाकी प्रायः राम के मंदिर होते हैं या श्याम के मंदिर होते हैं, किंतु यह मंदिर राम श्याम का मंदिर है कि जो यही लीला का भाव वहां व्यक्त करता है। कभी समय मिले तो इस मंदिर में भी जरूर आप सभी जाइएगा। तो नंददास जी की कृपा से तुलसीदास जी को भी श्रीनाथ जी में श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए हैं। गोकुल ले गए हैं, और गोकुल में जहाँ श्री गुसाई जी विराज रहे थे, गुसाई जी के दर्शन करते ही तुलसीदास जी ने पुनः प्रणाम न किया, पुनः नमन न किया। नंददास जी क्यों कह रहे, भाई હવે તને શું થઈ ગયું? तो कहे, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण धरो हाथ। तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा जब मेरे सामने धनुष और बाणधारी राम आ जाएं। तो श्री गुसाई जी ने खुद के पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी को वहाँ बुलाया, कि जिनका नाम ही रघुनाथ था, और तभी उनका नया नया प्रस्ताव भी हुआ था, और बहू जी का नाम जानकी बहू जी था।
तो पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी बहू जी जो हमारे ही पूर्वज हैं, क्योंकि हम सब पंचम घर से हैं, तो हमारे ही पूर्वज ने उनको इस रूप में दर्शन दिए हैं। तो चलिए एक बार श्रद्धा से और भाव से बोलें, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। नंददास जी का चरित्र अगाध है, विशाल है, किंतु हमारा समय अगाध भी नहीं है और विशाल भी नहीं है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने कार्य में आगे बढ़ना पड़ेगा। नंददास जी के बाद प्रियजनों प्रसंग आता है चतुर्भुज दास जी का। कुमन दास जी के ये पुत्र थे और इनको नाम चतुर्भुज दास कैसे पड़ो वो भी एक बहुत सुनने लायक बात है कि एक बार ठाकुर जी कुमन दास जी को खुद के संग माखन चोरी करवे ले गए, और जहां माखन चोरी करवे ले गए और वहाँ छीके पे सगरी दधी, जो छीका था गोपी के वहाँ मटकी में माखन भरा हुआ था। कुम्भन दास जी को घोड़ा करके श्रीनाथ जी उनके ऊपर चढ़े हैं और खुद के 2 श्रीहस्त से वो मटकी पकड़ी है, और इतने में ही उनकी जो धोती हती श्रीनाथ जी की वो हो गई है ढीली। अब क्या करें, 2 श्रीहस्त वो ऊपर वासे मटकी पकड़ रखी और धोती हो गई ढीली। तो प्रभु ने खुद के 2 श्रीहस्त और प्रकट किए और उनसे खुद की धोती को संभाला। 2 श्रीहस्त से मटकी पकड़ी और 2 श्रीहस्त से खुद की धोती को संभाला, और ये दर्शन कुम्भन दास जी ने किए। और घर जाके समाचार मिले कि अरे भैया बधाई हो, आपके घर छोरा हुआ है। तो क्या अब ये छोरा को नाम मैं चतुर्भुज दास रख रहे हूँ। तो वहाँ चतुर्भुज दास जी इस प्रकार उनका नाम पड़ा है, और बहुत भगवदीय थे जिनको श्रीनाथ जी के लिए बहुत प्रेम था। जब श्रीनाथ जी होली खेल करवे मथुरा पधारे और जब 1.5 महीना श्रीनाथ जी को मंदिर सूनो रहो तो इनको मन बहुत व्यथित हो गया, और इन्होंने ही वो कीर्तन लिखा कि जो बहुत प्रख्यात है, श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिना रहो न जाए। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए इस कीर्तन का श्रवण करते हैं। श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन सावरे लाल तुम बिन रहो न जाए। दर्शन को नैनात पे बचन सुनन को दर्शन को नैनात पे लाल बचन सुनन को कान। उतने में ही वहाँ उन्हें खुशखबरी मिली है, और यहाँ हमारे बीच भी एक हमारे पूज्य ताज जी पधारे हैं। तो चलिए हम सभी खड़े होके आपका स्वागत करें। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री द्वारकेशलाल प्यारे की जय। प्यारे वल्लभ की जय, बोलो विठ्ठल 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 की जय। हो बोलो यमुने महारानी की जय जय जय। बोलो यमुने महारानी की जय जय जय। हो बोलो यमुने
प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। ओ प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। ओ प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। श्रीमद वल्लभाधीश की जय। बावन की जय चोर आसन की जय। हो 252 की जय चोरी आसन की जय। हो 252 की जय चोरी आसन की जय। 252 की जय चोरी आसन की जय। बोलो भगवदियन की जय जय जय। बोलो भगवदियन की जय जय जय। हो बोलो भगवदियन की जय जय जय। बोलो भगवदियन की जय जय जय। हो प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। ओ प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। हो प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। हो बोलो यमुने महारानी की जय जय जय। बोलो यमुने महारानी की जय जय जय। हो बोलो यमुने महारानी की जय जय जय। बोलो यमुने महारानी की जय जय जय। हो प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय। बोलिए श्री वल्लभाधीश की